Hello everyone, myself Mukesh Singh. I am here to teach you the chapter Structure of Matter. In my last lecture, I have discussed about what is matter made up of, atoms, molecules and their occurrence, about their occurrence. हम लोगों ने इसके बारे में बात कर लिया. Today we will discuss mixture. Today we will discuss about mixture. What are the differences between compound and mixture, atomicity, etc. All these things. But before this we should know about molecules more. हमें थोड़ा सा और ज्यादा जानना चाहिए molecules के बारे में. As we know that molecules are the smallest particle of a compound, but not a compound only. Molecules are the smallest particle of an element or of a compound. Means molecules जो है वो किसी एलिमेंट का भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो सकता है या किसी कंपाउंड का भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो सकता है. बट अगर हमसे ये पूछा जाए कि एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है, एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है, तब तो हम लोग एटम ही बोलेंगे. एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल. Atom is the smallest particle of any element, but molecule is the smallest particle of any element or any compound. Okay, let us see what I am talking. Let us see. If we talk about H2, N2, O2, Cl2, etc. And if we talk about H2O, CO2, SO2, etc. then these are the molecules but of an element. So we write here molecules of an element. Molecules of an element, and these three are here are the molecules of a compound. These are the molecules. Why these are the molecules? Because here in this we can see here that there are two atoms. So combination of atoms are called what? Molecules. When two or more atoms combine together, they form molecule. Here also, in this formula we can see two atoms of hydrogen, one atom of oxygen. That is, three atoms are involved in H2O. So this is also a molecule. This is also a molecule. This is also a molecule. But these molecules are the molecules of a compound. Because these are the smallest particle of a compound. When so many H2O, millions and billions of H2O will combine together chemically, then only they form a drop of H2O. एक बूंद पानी को बनाने में ऐसे H2O लाखों करोड़ मोलिक्यूल्स H2O के लग जाते हैं एक बूंद पानी में. So we can see here that similarly carbon dioxide. ये सिंपली लिखा हुआ है CO2. इसका मतलब ये एक मोलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है. ऐसे CO2 मोलिक्यूल्स काफी सारे मिलियंस में कंबाइंड होंगे केमिकली, तब जाकर करके हमको थोड़ा बहुत कार्बन डाइऑक्साइड हमको सम क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमको मिलेगा. सिमिलरली हियर H2, N2, O2, Cl2, these all are the molecules because they have two or more than two atoms. That's why they are called molecules. But we can see here that all atoms are same. As for example, in H2, H and H atoms are involved. In here, N and N atom are involved. Here, O and O atom are involved. So here, same kind of atoms are involved. So they are molecules, but of an element. ये molecules तो हैं, लेकिन वो किसी element के हैं. हम लोग ये भी जानते हैं कि ये molecule हो या ये molecule हो, ये atom के मिलने से ही बना है.
ये एटम के ही मिलने से बना है। लेकिन कंपाउंड के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो नॉर्मली इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, मतलब H2O के ही फॉर्म में रहेगा, CO2 के ही फॉर्म में रहेगा और कंबाइन होगा ताकि थोड़ा बहुत हमको क्वांटिटी मिल सके CO2 का, H2O का। वो नॉर्मली इंडिपेंडेंटली ही एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन ये जो है मे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली और नॉट, ये मतलब ये जो, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एटम्स जो है मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एटम्स। तो ये H और H के मिलने से बना है H2, ये N और N के मिलने से बना है N2। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मॉलिक्यूल्स किसी एलिमेंट का भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स किसी कंपाउंड का भी हो सकता है। ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स तो हैं लेकिन किसी कंपाउंड के हैं, और ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो किसी एलिमेंट के हैं। However, if we write as H2, it means what? Hydrogen element. If we write O2, it means what? Oxygen element. So these are, but how much oxygen element? I don't know. हम लोग नहीं जानते कि ये कितना मॉलिक्यूल्स, अभी तो सिंपली वन मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब तक हमको कोई क्वांटिटी नहीं दिया हुआ रहेगा हम लोग उसको पता नहीं कर सकते कि ये कितना मॉलिक्यूल्स इसमें इन्वॉल्व होगा। In class 9 we have to study about number of atoms, number of molecules, etc. All these things. Now we should move further. Our next topic is mixture. Our next topic is mixture. We have seen that element and compound are pure substances. Element and compound are pure substances, but mixture are not. As for example, H2, N2, O2, CO2, you can take H2O, etc. So these are either an element or a compound. So element or a compound is a pure substance, but mixture is not a pure substance. So what will be the definition of mixture? When two or more element or compound, when two or more element or compound mix together, and there is no chemical change, between them, we get a mixture. मीन्स जब दो या दो से अधिक एलिमेंट या कंपाउंड मिक्स्ड होते हैं, एक साथ हम लोग उनको मिक्स करते हैं, और मिक्स करने से वहां पे कोई केमिकल, और ये जो मिक्स हो रहा है ना वो फिजिकली हो रहा है, वो केमिकली नहीं हो रहा है। देयर इज नो केमिकल चेंज बिटवीन देम, उनके बीच में कोई केमिकल चेंज नहीं होगा, तब हमको एक मिक्सचर मिलता है। एज फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टेक आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर, मिक्स्ड देम प्रॉपर्ली। हम लोग आयरन सल्फर लेते हैं, आयरन फिलिंग्स लेते हैं, आयरन का टुकड़ा, और ये सल्फर पाउडर लेते हैं, उन दोनों को फिजिकली से ही हाथ से हम लोग मिला देते हैं, तो हमें एक आयरन एंड सल्फर का मिक्सचर मिल जाता है। क्योंकि वहां से भी कोई नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, वो रिएक्ट किए नहीं है, वो फिजिकली मिक्स्ड हुए हैं। इन द मिक्सचर no new molecule will be formed. In a mixture
in a mixer, no new molecule is formed. मीन्स कोई नए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं होगा, कोई नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन, सब्सटेंस केमिकली कोई नए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं होता है। जैसे कि अभी हम लोगों ने मॉलिक्यूल के बारे में देखा था H2O2 CO2 एक्सेट्रा। तो ऐसा नहीं है कि हम इधर से कोई एलिमेंट को मिलाएं, इधर से कोई एलिमेंट को मिलाएं और हमको कोई थर्ड जो है थर्ड टाइप का एलिमेंट हमको क्या हो जाए, मिल जाए। ऐसा मिक्सर में नहीं होता है, बिकॉज दे डू नॉट रिएक्ट केमिकली बट दे मिक्स टुगेदर फिजिकली। As we know that when two or more than two elements or compound mix together, it is not necessary that they combine chemically. जरूरी नहीं है जब हम लोग कोई दो एलिमेंट, दो या दो से अधिक एलिमेंट या कंपाउंड को आपस में मिक्स करते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि वे हमेशा दे ऑलवेज रिएक्ट केमिकली। ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो फिजिकली भी रिएक्ट करते हैं। केमिकली इट इज नॉट नेसेसरी दैट दे रिएक्ट ऑलवेज केमिकली। एज वी नो दैट फॉर अ केमिकल रिएक्शन देयर इज सर्टेन कंडीशन, देयर शुड बी सर्टेन कंडीशन। और वो कंडीशन क्या क्या है? हो सकता है कि जो हम एलिमेंट ले रहे हैं, एक एलिमेंट और ये एक एलिमेंट, वो आपस में रिएक्ट ही ना करे। इट मे बी पॉसिबल दैट टू एलिमेंट्स डू नॉट रिएक्ट टुगेदर केमिकली। हो सकता है उनकी रिएक्टिविटी एक दूसरे से वो मतलब उनके एटम्स जो है वो रीअरेंज नहीं हो रहे हैं, वो ये एक एलिमेंट से रिएक्ट कर ही नहीं रहा। ये एक पॉसिबल है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज दैट दे डू नॉट रिएक्ट केमिकली एट ऑल, करे ही नहीं। अच्छा, second what will be possibility? Second possibility is that if they react, अगर वो ऐसा रिएक्ट करते हैं, दोनों एलिमेंट या दोनों कंपाउंड अगर रिएक्ट करते हैं, then there must be certain favorable conditions for reacting them. As for example, जब हम लोग आयरन और सल्फर को मिक्स करते हैं तो वो रिएक्ट नहीं करते हैं, बट जब हम उनको हिट करते हैं तब वो रिएक्ट कर जाते हैं। सो यहाँ पे हिट जो हम लोग सप्लाई कर रहे हैं वो हुआ फेवरेबल कंडीशन फॉर द रिएक्शन टेक्स प्लेस। रिएक्शन के होने के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या हुआ? यहाँ पे हिट सप्लाई करना। समटाइम्स वी हैव सीन दैट कंपाउंड्स और एलिमेंट्स डू नॉट रिएक्ट इन देयर सॉलिड स्टेट। they must have to be liquefied or mixed with water, you can say। पानी के साथ में हम लोग पहले उसको मिक्स कर लेते हैं और तब जाकर करके इस कंपाउंड को भी मिक्स कर लिए, इस कंपाउंड को भी मिक्स कर लिए, तब जाकर दोनों हो सकता है कि वो केमिकली क्या करे, रिएक्ट करे। सो वन थिंग इज क्लियर दैट व्हेन टू और मोर एलिमेंट और कंपाउंड मिक्स टुगेदर देन इट इज नॉट नेसेसरी दे रिएक्ट केमिकली। ये जरूरी नहीं है कि वो केमिकली ही रिएक्ट करेगा। दे मिक्स्ड फिजिकली, दे मे बी मिक्स्ड फिजिकली और रिएक्ट केमिकली। One more important thing is that in a mixer no new molecule is formed। कोई नए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं होता, किसी भी नए तरह के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं होता है। After this we have to study about difference between compound and mixer। Differences between compound and mixer. So we can write here as by the table we can understand it. Here we write compound and here I am writing mixer. So first point in compound. First
in compound. Constituents combine together chemically. Constituents combine together chemically in a fixed ratio. Second, constituents can be separated, may be separated only by chemical method. Only by chemical methods. Third, property of compound. Property of compound will be different. Will be different from its constituent elements. From its constituents elements. Next point. Okay, after writing this we will write. Similarly here, point number 1. Constituents mixed together, not constituents mixed together, not chemically but physically. Similarly, second point, constituents can be separated by physical methods. Point number 3, property of mixture. Property of mixture. Property of mixture will be those of its constituent elements. You can see here that what are the differences between compound and mixture. So constituent combine together chemically in a fixed ratio. कंपाउंड का जो भी फॉर्मेशन होगा उसके एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होंगे केमिकल रिएक्शन से, और वो भी एलिमेंट्स जो होंगे वो फिक्स्ड रेशियो में होंगे. फॉर एग्जांपल अगर वाटर हमें वाटर बनाना है, H2O बनाना है, वाटर बनाना है, तो हाइड्रोजन
ऑक्सीजन का रेशियो जो होगा वो 2:1 होगा। हमेशा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन 2:1 के रेशियो में कंबाइन करेगा केमिकली, तभी जाके वाटर कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। लेकिन यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट मिक्सर जो आपस में जो मिक्स्ड होते हैं वो केमिकल नहीं होते हैं, फिजिकली होते हैं। मीन्स उन लोगों को ऐसे ही किसी भी रेशियो में हम ले सकते हैं, इन एनी रेशियो। किसी भी हम रेशियो में उस एलिमेंट्स को ले सकते हैं। मीन्स एक एलिमेंट को अधिक, दूसरे एलिमेंट को कम भी ले सकते हैं। दोनों को मिक्स करेंगे, हमें एक मिक्सर मिलेगा। सिमिलरली हियर कंस्टिट्यूएंट्स मे बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल मेथड्स। मीन्स कंपाउंड के जो भी कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनको हम लोग अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं केवल केमिकल मेथड के द्वारा। As for example, if you want to separate hydrogen and oxygen from water, then by electrolysis of water, it may be possible. That is hydrogen and oxygen, that is its constituent elements of water, that is hydrogen and oxygen may be separated by electrolysis of water. So by chemical method only we can separate them. But here constituents can be separated by physical methods. हम लोग फिजिकली उसको अलग अलग कर सकते हैं। As for example, if we take iron and sulfur, mix them. Iron is a solid, sulfur is a solid. दोनों को मिक्स कर दिए, and by magnetic separation method we can separate the iron fillings from the mixture of iron and sulfur. उसको कोई केमिकली सेपरेट करने की जरूरत नहीं है, वो होगा भी नहीं, आराम से फिजिकली ही वो हो जाएगा। थर्ड डिफरेंस इज property of compound will be different from its constituent elements. कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होगी, जो गुण होगा कंपाउंड का, वो अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से बिल्कुल ही अलग होगा। As for example, if we take sodium and chlorine, so by the chemical combination of sodium and chlorine, we get sodium chloride. Here, sodium is toxic, chlorine is toxic, but sodium chloride is not toxic. It is used in our everyday life. We all know that. Similarly, if we take the hydrogen gas and oxygen gas, they react chemically and form water. What we will see, हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे? Hydrogen burns. हाइड्रोजन तो जलता है with pop sound. ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन. ऑक्सीजन भी क्या करता है? कंबशन को सपोर्ट करता है। बट जो हमको वाटर मिला इन दोनों के केमिकल रिएक्शन से, वाटर तो मेरा फायर एक्सटिंग्विशर है। इट मीन दैट जो कंपाउंड का जो प्रॉपर्टी होगा वो उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से बिल्कुल ही डिफरेंट होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सर विल बी दोज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। मिक्सर की जो प्रॉपर्टी होगी वो अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट की तरह ही होगा। वहां पे यहाँ पे कोई अलग प्रॉपर्टी उसका नहीं बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज, ऑल ऑफ यू सी ऑल दिस पॉइंट्स। आफ्टर राइटिंग और अंडरस्टैंडिंग दीज पॉइंट्स, we will see fourth point. Fourth differences between compound and mixer. Fourth difference. What is fourth difference? Often energy is released or absorbed. Often energy is released or absorbed during a chemical reaction, during formation of a compound. What? First of all, we should write here. No energy is released or
absorb in the formation of mixture. जनरली एनर्जी या तो रिलीज होता है या एब्जॉर्ब होता है किसी भी कंपाउंड के फॉर्मेशन में। किसी भी कंपाउंड का जब फॉर्मेशन हो रहा होता है, केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, उस दौरान या तो एनर्जी रिलीज होगा या एनर्जी क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। एक्चुअली एनर्जी का भी तीन फॉर्म होता है जनरली केमिस्ट्री में। एनर्जी में बी सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, एनर्जी में बी सप्लाइड और रिलीज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी में बी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ लाइट। रिलीज और एब्जॉर्ब दोनों हम लोग कह रहे हैं। हम लोग एनर्जी का तीन फॉर्म देखें जो कि केमिस्ट्री में जनरली यूज होता है, वो है हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो जनरली कोई भी कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा होता है तो ये तीन चीजें जो है वो या तो एब्जॉर्ब होती हैं, ये तीनों में से कोई एक चीजें या तो एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगा। लेकिन ऐसा मिक्सर में नहीं है। कभी भी मिक्सर का फॉर्मेशन हो रहा होगा वहां पे कोई एनर्जी ना ही रिलीज होता है और ना ही एब्जॉर्ब होता है। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सर। हम लोग ने देखा इसको। Now we should move ahead. Our next topic is atomicity. Our next topic is atomicity. Any guess about atomicity? Yes, you all are very intelligent, I know. Actually, atomicity means total number of atoms present in a molecule of an element. किसी एक एलिमेंट के, किसी भी एलिमेंट के एक मॉलिक्यूल में, उस एलिमेंट का बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइंड हुआ होगा, तब जाके थोड़ा बहुत हमको वो क्या मिला, 50 ग्राम, 40 ग्राम, 30 ग्राम ऐसे कुछ हमको मिला होगा वो एलिमेंट। लेकिन हमें पता है कि अगर हम एक बूंद भी पानी लेते हैं, इफ यू टेक 1 ड्रॉप ऑफ वाटर, इट कंटेन मिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल तो काफी छोटा होता है, मॉलिक्यूल्स तो बहुत ज्यादा जब आपस में कंबाइंड होगा केमिकल, तब जाके हमारा वो कंपाउंड या एलिमेंट का फॉर्मेशन हो रहा होगा। तो एटॉमिसिटी क्या है? एक मॉलिक्यूल में किसी भी एलिमेंट के एक मॉलिक्यूल में जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स होंगे, वही उनका एटॉमिसिटी कहलाएगा। तो एटॉमिसिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट in a molecule of an element total number of atoms present in a molecule of an element called atomicity. एग्जाम्पल्स, ये है मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। इस और ये कितने मॉलिक्यूल है? 1 है, 2, 3, 4, 5, 6 कितने मॉलिक्यूल है ये? देखो फॉर्मूला के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब क्या लिखा हुआ है? 1। तो ये 1 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन है। ऐसे ऐसे बहुत सारे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स जब आपस में कंबाइन हुए होंगे, ज्वाइन हुए होंगे, तब जाके एक हाइड्रोजन एलिमेंट का फॉर्मेशन हुआ होगा। 5 ग्राम, 10 ग्राम, 15 ग्राम ऐसे कुछ हुआ होगा। So, in one molecule of hydrogen, how many atoms are here? 2 atoms. So, its atomicity will be 2. Similarly,
O2. How many atoms are here? 2. O and O. 2 atoms are here. In one molecule. कोई भी हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं ना, कोई भी फॉर्मूला लिखो, चाहे वो एलिमेंट का हो चाहे वो कंपाउंड का हो, वो वन मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। एज फॉर एग्जांपल इफ वी राइट CO2, CO2 means what? One molecule of CO2. CO2 का मतलब ये नहीं है कि 1 लीटर CO2 या हाफ लीटर CO2, ये मीनिंग बिल्कुल ही नहीं है। CO2 का मतलब है 1 मोलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, एक कंपाउंड है, उसके केवल एक मॉलिक्यूल को वो फॉर्मूला रिप्रेजेंट करता है। हम लोग वी विल सी लेटर इन दिस चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। सो नाउ टेल मी, कैन यू गिव एग्जांपल ऑफ एन एलिमेंट व्हिच हैव एटॉमिसिटी 3? यस, ऑब्वियसली one example is here O3, ozone. We can see here there are 3 atoms involved, so its atomicity will be 3. Similarly, phosphorus P4, phosphorus exists in the form of P4, so atomicity will be 4. And S8, sulfur atomicity of sulfur is what? 8. Atomicity of sulfur is what? Here we can see 8. So these are the atomicity of different elements. I think you all are now very well prepared. Atomicity complete हो गया? Okay, dear children, we have seen here that first of all, in lecture 1 we have seen what is matter, made up of matter किससे बना हुआ है। हमने देखा था वहां पे कन्नड़ साहब थे, वहां पे जॉन डॉल्टन साहब थे। एक के अकॉर्डिंग अणु था, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एक के अकॉर्डिंग एटम था। अणु को ही क्या नाम दे दिया गया था? एटम। उसके बाद हमने देखा था कि एलिमेंट के तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल हम लोग एटम ले सकते हैं, लेकिन किसी कंपाउंड के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम लोग एटम नहीं ले सकते। व्हाई? बिकॉज कोई कंपाउंड है जैसे H2O, तो उसमें तो 2 तरह का एटम इन्वॉल्व है ना, तो हम लोग किसी एक का नाम कैसे ले सकते हैं? दैट्स व्हाई वी से दैट कंपाउंड्स स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड इज अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल होगा H2O मॉलिक्यूल, वाटर के लिए, वाटर कंपाउंड के लिए H2O मॉलिक्यूल हो गया। उसके बाद हमने देखा था व्हाट आर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट एंड कंपाउंड है क्या? तो हमने देखा था दोनों का दोनों, एलिमेंट एंड कंपाउंड दोनों प्योर सब्सटेंस के कैटेगरी में आता है, और इम्प्योर सब्सटेंस के कैटेगरी में आता है क्या? मिक्सर, जो आज हमने देखा। सो एलिमेंट एंड कंपाउंड, डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड। आफ्टर दिस एटम, अबाउट वी हैव सीन अबाउट एटम एंड मॉलिक्यूल्स। देन आफ्टर वी हैव सीन अबाउट देयर अकरेंस, कौन सा एलिमेंट अर्थ क्रस्ट में कितना % अवेलेबल है। आफ्टर दिस we have seen the properties of compound. मेनली 3 प्रॉपर्टी जो कंपाउंड का है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। वो तीनों प्रॉपर्टी क्या क्या है, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। These 3 properties are: first, elements combine together chemically in fixed ratio. Elements can be separated only by chemical method, and properties of compound will be different from those of its constituent elements. These 3 are the very important properties of a compound. After this, we have seen today about mixer. What are mixers? So हमने देखा था when 2 or more elements combine together, or compound combine together, mix together, and there is no new molecule formed, then we get a mixture. After this, we have seen the differences between compound and mixture. We have seen there 4 differences between compound and mixture. And after this, हमने ये भी देखा था कि ये जरूरी नहीं है, it is not necessary that always when 2 or more elements combine or mix, then always they form a new molecule. ऐसा हमने देखा था, ऐसा नहीं होता है। जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट या कंपाउंड आपस में मिक्स होते हैं, वो फिजिकली भी मिक्स्ड हो जाते हैं। केमिकली रिएक्ट करने के लिए, केमिकली मिक्स्ड होने के लिए
सर्टेन कंडीशंस को फॉलो करेगा, तब जाके वो हो सकता है कि केमिकली वो रिएक्ट करे। After this we have seen about atomicity. So atomicity is nothing but it is total number of atoms present in a molecule of an element. किसी भी एलिमेंट के एक मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो प्रेजेंट है वही इसकी एटोमिसिटी कहलाती है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन की एटोमिसिटी 2, O2 ऑक्सीजन का एटोमिसिटी 2, क्लोरीन का भी 2, ओजोन का 3, फास्फोरस का 4, सल्फर का 8 एक्सेट्रा। थैंक यू।